Good morning, students. Hope you all are doing great. Today we will learn about a new poem, and the name of the poem is Whistle Away. So now let's start our class. So all of you, please take out your literature book and open page number 25. Dear students, when we whistle when we are in happy mood. हम कब विसल करते हैं? जब हम बहुत खुश रहते हैं, जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, देन हम उस टाइम विसल करते हैं. एंड वाई वी विसल, एंड विसल क्यों करते हैं? वी विसल टू बी हैप्पी एंड फॉर अदर्स टू मेक देम हैप्पी एंड जॉयफुल एंड टू मेक सिचुएशन वेरी प्लीजेंट. इट मीन्स हम विसल तब करते हैं जब हम खुश होते हैं एंड हम अपने आसपास जो हमारे लोग हैं उनको खुश रखना चाहते हैं एंड जो सिचुएशन है उसको प्लीजेंट करना चाहते हैं. मीन्स जो भी सिचुएशन में हम रहते हैं उसे बहुत काम एंड प्लीजेंट करने के लिए हम विसल करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर डिफिकल्ट वर्ड्स with their meaning which are given in your poem. Learn all the difficult words with their meaning. Now let's see the first word given here. Merry means happy. Sowing, to plant seeds in the ground. Hoeing, removing weeds, breaking soil, etc. using a long-handled garden tool with a flat blade. Weeds, unwanted plants. Raking, leveling soil. Cheer means encourage. Fret, worry about something. Lad, young boy. Pout, push out one lower lip because one is annoyed or unhappy. So now students, first I will read the whole poem, then I will explain you. Whistle away, my merry boy, with happy face and heart of joy. If it will help you to be strong, whistle a tune when things go wrong, and whistling lightens it for you. If ever your task is hard to do, whether it be sowing the seeds, hoeing the corn, or pulling weeds, gathering fruits, or wrecking hay, or driving cows, whistle away. Whistle a tune if you cannot sing, and that would seem the next best thing that you can do. Perhaps 'twill cheer the heart of some who chance to hear. Better to whistle than to pout and scout and fret, no one can doubt. So keep a merry heart, my lad, and thus make other people glad. Do all the good you can each day, and as your toil whistle away. Now see the first two lines which is given on the top. Whistle away, my merry boy, with happy face and heart of joy. Here the poet conveys his message through a boy that he has a very good connection with boy. That is why he say merry, my merry boy. He said that this boy is very joy with his heart. The poet also says that if a boy is happy with his heart, then definitely his face also reflect his happiness. It means इस पोएम में पोएट अपने मैसेज को एक बॉय के थ्रू कन्वे कर रहे हैं कि जो बॉय है पोएट स्टार्टिंग में ही पोएम के कह रहे हैं माई मैरी बॉय मीन्स मेरा प्यारा बच्चा. एंड ही इज सेइंग दैट, वो बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो बहुत जॉयफुल है, बहुत हैप्पी है और बहुत खुश रहता है. अगर आप खुश रहेंगे देन अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट करता है. बट अगर आप सैड हैं देन आपका सैडनेस भी आपके फेस पे ईजिली पता चल जाता है कि आप सैड हैं. बट अगर आप बाय हार्ट आप बहुत खुश हैं देन आपकी जो हैप्पीनेस है आपके फेस पे ईजिली रिफ्लेक्ट करने लगती है. Now see the next line given here. If it will help you to be strong, whistle a tune when things go wrong. Every time all the things will not go very smoothly, that we all know. हम सबको पता है कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो एक जैसी कभी नहीं रहती हैं.
कभी भी ऐसा नहीं रहता कि हमेशा हम खुश रहेंगे. Sometimes we all face some difficulties. That moment we should not lose our temper and patience. Hence, the poet says us to whistle. It will help us energy. It will provide us energy and help to face the difficulty with patience and calmly. Whistling makes the situation better. In this line, इन लाइन में पोएट कह रहे हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो लाइफ में जो सिचुएशन चलती रहती है वो एक जैसी नहीं रहती. कभी हम अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी फेस करते हैं. देन उस टाइम हमें अपना टेम्पर मीन्स अपना एटीट्यूड है, अपना जो बिहेवियर है उसमें उसे लूज़ नहीं करना चाहिए. हमें खुश रहना चाहिए एंड सारी सिचुएशन जो हम अपनी लाइफ में फ़ेस करते हैं उसको बहुत पेशेंस के साथ और बहुत हैप्पीनेस के साथ उसको फेस करना चाहिए. एंड जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन हमको विसल करना चाहिए, बिकॉज विसल करने से जो जिस सिचुएशन में आप हैं वो सिचुएशन आपकी बहुत बेटर हो जाती, बहुत अच्छी हो जाती एंड हमारा जो पेन होता है सिचुएशन का वो थोड़ा कम हो जाता है. सो हम लोग को विसल करना चाहिए. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. एंड विस्लिंग लाइटन्स इट फॉर यू इफ एवर योर टास्क इज हार्ड टू डू. We know that we get different work to do, but when we do some work, we face different problem. But we have to overcome the problem with our intelligence, knowledge, and at that moment we should not just leave the problem, we should solve the problem with calmly and patiently. Means इन लाइन में पोएट कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आते हैं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी यहाँ आते हैं. देन उस प्रॉब्लम को हम लोग को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए. उस प्रॉब्लम को हमें फेस करना चाहिए अपनी नॉलेज के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपने पेशेंस के साथ एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि किसी प्रॉब्लम को लीव करके आप आगे चल दिए, ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम को फेस करिए पूरे अपने इंटेलिजेंस के साथ, अपने पूरे एनर्जी के साथ और अपने पूरे पेशेंस के साथ. See the next line given. Whether it be sowing the seeds, hoeing the corn, or pulling weeds, gathering food, or wrecking hay, or driving cows whistle away. In this line, the poet is saying sowing the seeds, hoeing the corn, pulling weeds, gathering fruits, driving cows. These all activities shows that the poet is saying that all these activities belongs to agriculture activities and the boy here in this poem is engaged in this agriculture activities. मीन्स ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि सोइंग द सीड्स, होइंग द कॉर्न, पुलिंग वीड्स. सो ये सारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं एंड ये जो बॉय इस पोएम में है वो सारी इस एक्टिविटीज़ को करता है, वो इस एक्टिविटीज़ में इंगेज है. So we all know before sowing the seeds, a farmer breaks the soil, level the soil, then sows the seeds. And here a boy is facing some difficulties in doing his work. So a poet is saying to whistle a tune that he gets energy and power to do his hard work with full energy and dedication and also with patience and calm. मीन्स हम सबको पता है कि एक जो फार्मर होता है वो पहले अपनी जो लैंड को उसको लेवल करता है, देन उस मीन्स पहले उसे ब्रेक करता है, लेवल करता है, देन उसमें सीड्स डालता है. सो ये सब प्रॉब्लम करते टाइम पोएट को मीन्स पोएट ये देखता है कि जो बॉय है वो कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है ये सारे काम करने में. देन पोएट बॉय से कहता है कि आप विसल करो. विसल करने से आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक पावर मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं विथ फुल एनर्जी के साथ एंड डेडिकेशन के साथ. और विसल करते रहिए ताकि आप काम रहें एंड पेशेंस रहें. See the next line given. Whistle a tune if you cannot sing, and that you see the next best thing. Here a poet is saying that we all are not expert in singing a song. So if we don't know how to sing, we can also whistle a tune, and it is also the best thing to do. Here in this line
इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि हम सभी लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं गाना गाने में, ओके। सो अगर हम गाना नहीं गा सकते हैं देन उस केस में हम विसल कर सकते हैं ट्यून, क्योंकि उससे भी हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें हमें एनर्जी मिलेगी एंड हम वो प्रॉब्लम को बहुत ईजिली और स्मूथली कर लेंगे। सो अगर आपको गाना नहीं आता है देन ऑल्सो आप विसल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा काम रखने में। Now see the next line given, that you cannot do perhaps twill cheer the heart of some who chance to hear. Here the poet told us that by whistling a tune we can lighten our mood and will not only make our mood happy but it will also help others to become happy and cheerful by listening the whistle. मीन्स इस लाइन में पोएट कह रहे हैं अगर हम विसल करते हैं देन विसल करने से हमारा मूड तो बहुत अच्छा होगा ही, बट हमारे जो आसपास लोग हैं वो भी बहुत खुश होंगे एंड उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। सो हमें विसल करना चाहिए अपने लिए भी एंड आसपास जो हमारे लोग रहते हैं हमारे पास उनको भी खुश करने के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, बेटर टू विसल देन टू पाउट एंड स्काउट एंड फ्रेड नो वन कैन डाउट। Here the poet is saying that pout and scold and fret are all negative things to do. Instead of that thing we should whistle. Means poet कह रहे हैं कि scold means scolding and fret means ये सारे नेगेटिव एक्टिविटीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हम लोग को विसल करना चाहिए ताकि हमारा सिचुएशन अच्छा रहे। Now see the next line given, so keep a merry heart, my lad, and thus make other people's glad. Do all goods you can each day, and as you toil whistle away. In this line, here the poet says my lad. My lad means young boy. By using this my lad we can say that poet loved this boy very much, that is why he says my lad means ये वर्ड जो दिया गया है पोएम में माई लैड, इससे ये पता चलता है कि पोएट उस बॉय से जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं उससे बहुत प्यार करते हैं। पोएट इज़ रिक्वेस्टिंग दैट कीप अ चेयरफुल हार्ट एंड गुड हार्ट। पोएट कह रहे हैं कि हमें अपना हार्ट खुश रखना चाहिए एंड बहुत अच्छा रखना चाहिए। मीन्स गुड हार्ट मीन्स अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने हार्ट में नहीं लाना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज फील गुड, वी शुड हेल्प अदर्स इन डूइंग देयर वर्क एंड शुड ऑल्सो गिव आवर थिंग्स एंड हेल्प अदर्स इन एवरी वे वी कैन डू। मीन्स हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए, अपनी कुछ थिंग दूसरों को देना चाहिए, अगर उनको उस चीज़ की ज़रूरत है देन हमें अपनी वो सामान दूसरों से शेयर करना चाहिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड जितनी जो भी चीज़ आप दूसरों के लिए कर सकें आपको वो काम करना चाहिए ताकि आप दूसरों की हेल्प करें एंड आपके आसपास जो लोग हैं वो भी खुश रहें आपसे। डू ऑल द गुड यू कैन ईच डे एंड एज योर टॉयल विसल अवे। So whatever you want to do, but if you whistle a tune, then your work will become more easy and it will give you strength, positivity and happiness. Means जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करें तो भी आप विसल करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो बहुत ईज़िली आप उस काम को कर लेते हैं एंड विसल करने से आपको एक अंदर से एक एनर्जी मिलती है, अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है एंड आप खुश रहते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो देन आप अच्छा काम भी करेंगे। So the poet ended the poem by giving a very good message that we should do our duties with happiness and should always be gentle and helpful to others. Means एंड में पोएट बहुत एक अच्छा बहुत गुड मैसेज आप लोग को दे रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से करना चाहिए एंड जब हम अपना वो काम करते हैं देन हमें खुश रह के काम करना चाहिए जिससे हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी खुश रहें एंड हमें अपने आसपास लोगों की हेल्प करना चाहिए, उन्हें भी खुश रखना चाहिए।
एंड वी शुड लिव आवर लाइफ विथ हैप्पीनेस, हमें अपना लाइफ हैप्पीनेस के साथ जीना चाहिए। एंड स्माइलिंग फेसेस, एंड हमेशा खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। डज नॉट मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज़, कैसा भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में फेस करें, हमेशा खुश रहिए। बी काम एंड इन्जॉय एवरी अप एंड डाउन इन लाइफ, हमेशा काम रहिए, एन्जॉय करिए लाइफ के जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो और या हैप्पी मोमेंट्स हो। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप all of you have understood the poem. Now I will end my class here. All of you please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you. Be safe and stay at your home.